Hello, dear student. Today we are going to start the second chapter, that is in agriculture and industrial development from environmental studies for FYBCom second semester. In this topic we are studying in detail about the agriculture. In the last topic, in the last first part, we have already discussed about the various types of the agriculture. Today, we are going to discuss about the environmental problem associated with the agriculture. Agriculture, it is the one of the activities which is done by the human being from the many years. It has the history more than 10,000 years. But from that time to today, the agriculture has developed a lot, and today's agriculture is known as a modern agriculture. In the last part, you have seen that there are various types of the agriculture, like subsistence agriculture, intensive mechanized farming, then plantation, shifting agriculture. So all of this agriculture does not have always effect on the environment, but some of them which are modernized, well mechanized agriculture always keep some effect on the environment. Among them, the modern agriculture has affected on environment. The first is the micronutrient imbalance. What is the micronutrient? In the soil, micronutrient means in the soil there is a nitrogen, potassium and phosphorus. It is essential for the plant's growth. Actually, most of the time the nitrogen, potassium and phosphorus will be there in the soil. But sometime due to some reason, in the soil the quantity of nitrogen, potassium and the phosphorus will be decreased, otherwise it will be not available in the soil. That's why the farmers are giving this micronutrient in the chemical form to the plants. But excessive use of this micronutrient can cause imbalance in the soil. How this imbalance is created? See, the soil is made from the various type of the material, air, water and the humus. If the proportion of this all material will be lost, then the soil will lose its fertility and it's called the imbalance of the soil. The second one is the nitrate excess concentration in water cause various health hazards called blue baby syndrome, which affect the infant's child and cause death. The third one is nitrogen and potassium in water make overnourishment of water as result algae and boom species. अभी देखो नाइट्रोजन पोटेशियम जैसे पानी में मिक्स होता है, तो पानी में मिक्स होने की वजह से वहाँ एल्गी बढ़ जाती है, बूम्स बढ़ जाते हैं, और जब ये एल्गी बूम्स बढ़ने लगते हैं तो पानी में जितना सारा ऑक्सीजन है वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं. ये एक बात है. और दूसरी बात, जो सन रेज होते हैं उस सन रेज को पानी के अंदर जाने के लिए जगह नहीं रहती, तो इसी सिचुएशन में पानी में जो ऑक्सीजन है उसमें उसकी कमी हो जाती है. दूसरी बात है कि जो सन रेज है नीचे तक पेनिट्रेट नहीं होते, तो उसके वजह से पानी में रहने वाले जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, उनके ऊपर इसका इफेक्ट होता है. और धीरे 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 पानी में भी जो लाइफ है, जिसको हम एक्वेटिक लाइफ है, वो एक्चुअली वो मर जाती है, उसका लॉस हो जाता है. तो ऐसे नाइट्रोजन और पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा पानी में होने की वजह से एल्गी और बूम्स बढ़ते हैं और इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट एनिमल्स के ऊपर होता है. उसके बाद नेक्स्ट है दैट some species of the pest survive even after the pesticide spray give birth to the highly resistant generation. अभी इसका मतलब क्या है? देखो, फार्मर क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इनका फार्म में यूज करते हैं, ठीक है. और ये जो केमिकल्स है वो केमिकल उनके बॉडी में अक्यूमुलेट होते हैं
लेकिन उसमें जो स्पीसीज के जिस स्पीसीज पे के ऊपर उनका इस्तेमाल किया है उनकी डेथ होती है, लेकिन उनके आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो ज़्यादा उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उनके बॉडी में हाईली रेजिस्टेंट पावर ऑटोमेटिकली नेचुरली जनरेट होता है। इसका मैं एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि डीडीटी का एक बायो एक्यूमुलेशन का फिगर दिया गया है, ठीक है। अभी ये डीडीटी जो पेस्टिसाइड है वो लास्ट सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी उसका यूज़ किया जाता था। इंडिया में आज भी कुछ गांव में इस पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये जो डीडीटी है ऑल ओवर वर्ल्ड बैन है, फिर भी इंडिया में कुछ गांव में आज भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, जब ये डीडीटी का इस्तेमाल करना शुरू हुआ तो उसका बहुत जल्दी इफेक्ट दिखता था, बहुत जल्दी इंसेक्ट मर जाते थे। उसका इफेक्ट रैट को मारने के लिए किया जाता था, बाकी के छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं उनको मारने के लिए उस डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक्चुअली जो इंसेक्ट मारने के लिए इस डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता था, धीरे धीरे ये पता चला कि ये डीडीटी का इस्तेमाल अभी आज की जो नेक्स्ट जनरेशन हो जैसे जैसे डेवलप हो गई है उनके ऊपर इस डीडीटी का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डीडीटी कमजोर हो गई है या एनिमल की पावर बढ़ गई है, स्पीसीज की पावर बढ़ गई है? यस, जो एनिमल्स है जो स्पीसीज है उनके शरीर में ये जो पेस्ट है उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनके शरीर में एक नेचुरली रेजिस्टेंट पावर जनरेट होती है। और ऐसे ही सारे बाकी के पेस्टिसाइड्स के बारे में भी होता है। जैसे पुराने जो पेस्टिसाइड्स होते थे तो उनका यूज़ अगर आज किया जाता है तो वो यूज़ इतना इफेक्टिव नहीं होता और उससे इंसेक्ट मरते नहीं है, क्योंकि उनकी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इससे क्या हो रहा है, जो इंसेक्ट है उनकी पावर, रेजिस्टेंट पावर और भी बढ़ती जा रही है। तो ये एक लॉस है। उसके बाद जो कभी कभी ऐसे ही होता है कि दैट जो इंसेक्ट है हम जो पेस्टिसाइड है हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट फॉर द इंसेक्ट। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी इससे नॉन टारगेट स्पीसीज भी मरते हैं। अभी इसका एग्जांपल दे सकती हूँ कि देखो, कुछ सालों पहले आपको बहुत सारे स्पैरोज, क्राउज, ईगल ये सारे बर्ड्स देखने को मिलते थे बिफोर 10-20 ईयर्स। लेकिन अभी ये दिखने वाले जो बहुत सारे बर्ड्स हैं अभी आपको नहीं दिख रहे। ऐसे क्यों हुआ है, उसका पीछे का रीज़न बताया जाता है कि ये जो पॉइजन है जो पेस्टिसाइड फार्म में यूज़ किया जाता है वो बायो अक्यूमुलेशन से धीरे धीरे बर्ड्स में फैल गया है, और उसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी कैपेसिटी लॉस हो गई है, और उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो बर्ड्स है उनके नंबर्स घटने लगे हैं। तो इस तरह से पॉइजनस गैसेस, पॉइजन्स की वजह से जो नॉन टारगेटेड स्पीसीज है जैसे अर्थ वॉर्म हो सकती है, नहीं तो बर्ड्स है, उनके नंबर डिक्रीज हो रहे। एक्चुअली दीज आर नॉट अनवांटेड स्पीसीज, वी वांट दैट, लेकिन ऐसे नॉन टारगेटेड स्पीसीज इस पेस्टिसाइड्स के वजह से टारगेट हो रहे हैं। उसके बाद आप पिक्चर में देख रहे होगे कि वहाँ एक बायो एक्यूमुलेशन की फिगर दिखाई है, वो फूड चेन भी दिखाया गया है। तो उसमें डीडीटी का कैसे सर्कुलेशन हुआ है वो दिखाया गया है। जैसे डीडीटी पहले स्मॉल फिश में एक्यूमुलेटेड हुआ था, उसके बाद बाकी के जो जू प्लैंकटन है उसमें भी एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद जो डीडीटी है वो बड़े फिश में के बॉडी में भी एक्यूमुलेट हुआ। ऐसे क्यों, क्योंकि जो बड़े फिश थे उन्होंने छोटे फिश को खाया और उसकी वजह से उनके बॉडी में जो पॉइजन था वो बड़े फिश के बॉडी में चला गया। एट द एंड अभी क्या होने वाला है, जो बाहर के पानी के बाहर के जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, वो क्या करेंगे, ये फिश को खाएंगे और उनके बॉडी में अल्टीमेट ये डीडीटी चला जाएगा और इन बर्ड्स को, इन एनिमल को फाइनली ह्यूमन बीइंग भी खाएगा। तो ये जो केमिकल का अक्यूमुलेशन है, पॉइजनस का अक्यूमुलेशन है, वो फूड चेन में सबके शरीर में होता जाता है और वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, और लास्ट फेज में जो लास्ट स्टेप में होता है फूड चेन के, तो उसके बॉडी में सबसे ज़्यादा इस पॉइजन का अक्यूमुलेशन होता है। तो ये बायो अक्यूमुलेशन चेन है। तो इसका मतलब क्या है, जो पेस्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड्स हम इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं, दे रहे हैं, वही घूम फिर के फिर से हमारे पास ही आने वाले हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेंजर फ्रॉम द एग्रीकल्चर
एक्टिविटी। उसके बाद है वाटर लॉगिंग। अभी वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, अगर पानी बहुत टाइम तक खेत में जमा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। अभी वाटर लॉगिंग अभी आपको लग भी सकता है कि ज़्यादा पानी का मतलब है प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ होगी, जल्दी ग्रोथ होगी, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कंटिन्यू 10-15 दिन तक अगर बारिश कंटिन्यू चली रहती है तो क्या होता है, जो क्रॉप है वो क्रॉप पीला पड़ता है और बाद में सड़ने लगता है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है, उनको भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और पानी के ज़मीन में अगर पानी ज़्यादा होता है और अगर हवा नहीं रहती है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो रूट्स है प्लांट्स के वो धीरे धीरे सड़ जाएंगे और उसके वजह से क्रॉप के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम है सलानिटी प्रॉब्लम। अभी सलानिटी का मतलब क्या है, जो जमीन का ऊपर का परत होता है, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, धीरे धीरे सॉल्टी हो जाता है। अभी ये सॉल्टी कैसे होता है, जैसे हम फार्मर्स फार्म को पानी देते हैं और उस पानी का धीरे धीरे सन रेज की वजह से इवेपोरेशन होता है। इस इवेपोरेशन के बाद नीचे बच जाती है सिर्फ सॉल्ट और उसके वजह से सलानिटी का प्रॉब्लम होता है। ऐसा प्रॉब्लम राजस्थान में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया गया है। राजस्थान में इंदिरा कैनल बनाया गया है और उस इंदिरा कैनल की वजह से वो सराउंडिंग एरिया में बहुत सारा लैंड सलाइन हो गया है, उसकी सलाइनिटी बढ़ गई है। ऐसे महाराष्ट्र में भी बहुत जगह पे हुआ है। महाराष्ट्र में जो शुगर केन की जो लैंड है उस लैंड में सलाइनिटी का प्रॉब्लम देखा गया है। उसके बाद 6 है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू यूज ऑफ द कमर्शियल प्ले स्पीसीज। अभी ये कमर्शियल स्पीसीज क्या है, दिस आर द बीटी बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, उसको हाई एड वैरायटी सीड भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि हाई इनपुट देके और हाई एड वैरायटी सीड्स का यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया गया। तो उसमें क्या यूज किए गए थे, हाई एड वैरायटी सीड्स। दिस सीड्स आर डेवलप्ड इन द लैबोरेटरीज। वो तो नेचुरली नहीं बने हैं, तो लैबोरेटरीज में जो सीड्स बने हैं उनमें फर्टिलिटी क्षमता नहीं होती, उनके जो बीज है फिर से हम वो उसको बो नहीं सकते। तो उसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल सीड्स है जो लाखों साल से पृथ्वी के ऊपर है, उनमें पहले से ही बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर है, उनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट पावर है, वो बहुत सारे कीटकों से, उसके बाद बहुत सारे डिसीज से नेचुरली फाइट कर सकते हैं। तो ऐसी सारी स्पीसीज को हम वी आर लूजिंग दिस ऑल स्पीसीज। तो ये जो स्पीसीज का लॉस हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट लॉस फॉर द इन्वायरमेंट। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड about the environmental problem associated with the agriculture. I will tell in the brief. The first is about the micronutrient imbalance, उससे नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की मात्रा ज़मीन में बढ़ जाती है। उसके बाद नाइट्रस पानी में ज़्यादा होने की वजह से ब्लू बेबी जैसे सिंड्रोम्स हो सकते हैं। तीसरी बात बताई थी नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा पानी में ज़्यादा बढ़ने की वजह से पानी में एल्गी और बूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसके वजह से बाकी के एनिमल्स मर जा सकते हैं पानी के अंदर के। उसके बाद मैंने बताया था कि जो पेस्टिसाइड्स है उनका कंटिन्यू यूज़ करने की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है स्पीसीज की, उनमें उनको रेजिस्ट करने की पावर जनरेट होती है। कभी कभी इसके वजह से नॉन टारगेट स्पीसीज भी उनको भी खतरा हो सकता है। उसके बाद पेस्टिसाइड में जो पॉइजन यूज़ किए जाते हैं, जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं, वो धीरे धीरे नेक्स्ट एनिमल को पास किए जाते हैं फूड चेन में, उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। पानी का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है। पानी के इवापोरेशन की वजह से सलानिटी का प्रॉब्लम होता है और उसके वजह से लैंड की फर्टिलिटी लॉस होती है। हमेशा ज़्यादा हाई एड वैरायटी सीड्स का यूज़ करने की वजह से बहुत सारे स्पीसीज का लॉस हो रहा है एंड दिस इज द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। उसके आगे भी जाके और एक रह गया कि अगर एग्रीकल्चर लैंड बनाना है, एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है और ये सारा जो लैंड फॉरेस्ट लैंड कट करने के बाद उसको
एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर. तो आज हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किया है. आई होप you have understand it. If you have any doubt and query, please comment below. Thank you very much.